बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ओपन हेम का जो डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग बुक है उसका चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर्स फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। So in this chapter we will see a system described by a linear constant coefficient difference equation can be represented by structures consisting of an interconnection of the basic operations of additions, multiplication by a constant, and delay, the exact implementation of which is dedicated by technology. So normally we have two type of discrete type system. One is IIR system and the other is FIR system. So first of all we will study about the basic structures for IIR system. So basically there are four type of structures for IIR system. Number first is the direct form structure, that is direct form 1, direct form 1 structure. Second is direct form 2 structure. Number 2 is direct form 2 structure. So this is direct form 2 structure. Number third is cascade realization or cascade structure. This is cascade structure, or it may be called as cascade realization. And the fourth one is the parallel realization. Parallel structure or parallel realization. So one concentration in the choice among these different structures is computational complexity. For example, in some digital implementations, structures with fewest constant multipliers and with the least delays branches are often most desirable. This is because multiplication is generally a time consuming and costly operation. So multiplication is generally a time consuming and costly operation so in digital hardware, and because each delay element corresponds to a memory register, so we need less computational complexities, we need less number of delays element, because we have to reduce the size of the hardware. Less register will occupy less space. So consequently, a reduction in the number of constant multipliers mean an increase in speed, and reduction in the number of delay element mean a reduction in memory requirement, and a reduction in memory requirement mean a reduction in space. But sometimes it is required to use a structure that does not have the minimum number of multipliers and delay element if their structure is less sensitive to finite register length effects. So there is always a trade-off between the number of between the computational complexity and the finite register length effects. So first of all, we will discuss about the direct form 1 structure. Then we will discuss about the direct form structure. Direct form 1 and direct form 2 structures are so now let come toward an example. हमें ये example जो है solve करना है. हमारे पास एक discrete time system है जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है वो इस इक्वेशन में गिवन है, और इस इक्वेशन को लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं या इसको डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली अ सिस्टम
whose input output relation is described by this equation, and now we have to draw the structure of the system. Okay, कौन सा स्ट्रक्चर? डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर हमने इसका ड्रा करना है और डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना है. सो किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करते हैं, बेशक वो डायरेक्ट फॉर्म 1 हो, डायरेक्ट फॉर्म 2 हो, कैस्केड स्ट्रक्चर हो, पैरेलल स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले हमें उस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना होगा. ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन पहला स्टेप क्या होगा? या तो आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन होगा, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर जो है वो आप उसका ड्रा करें. ठीक है, अच्छा, या आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगा, यानी आपको एक ऐसा इक्वेशन गिवन होगा जो इस सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को डिस्क्राइब करे. ठीक है, सो अभी हमें डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हमें सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना होगा. तो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका जी ट्रांसफॉर्म लेना होगा. सो इस पूरे इक्वेशन का जी ट्रांसफॉर्म ले ले. जी ट्रांसफॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वाई ऑफ जी, ये हो जाएगा 0.1 वाई जी इनवर्स वाई ऑफ जी, ये हो जाएगा प्लस 0.2 जी माइनस 2 वाई ऑफ जी प्लस 3 एक्स ऑफ जी प्लस 3.6 जी इनवर्स एक्स ऑफ जी प्लस 0.6 जी माइनस 2 एक्स ऑफ जी. सो नाउ वाई ऑफ जी के जो कोफिशेंट है उनको एक साइड पे करें और एक्स ऑफ जी के कोफिशेंट दूसरे साइड पे करें. सो वी विल गेट वाई ऑफ जी प्लस 0.1 जी इनवर्स वाई ऑफ जी माइनस 0.2 जी माइनस 2 वाई ऑफ जी. दिस इज इक्वल टू 3x ऑफ जी sorry plus 3.6 c inverse x of g and plus 0.6 g minus 2 x of g. Okay, now taking common y of z from this side of equation, we will get 1 plus 0.1 z inverse plus minus 0.2, this is minus 0.2 z minus 2 is equal to, taking common x of z, we will get 3 plus 3.6 z inverse plus 0.6 z minus 2. So dividing this, we will get y of z divided by x of z is equal to 3 plus 3.6 z inverse plus 0.6 z minus 2, 1 plus 0.1 z minus 1 minus, this is minus 0.2 z minus 2, and we know that y of z divided by x of z is equal to h of z, and this is the system transfer function. This is the system transfer function. So आपने सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, दैट इज़ h ऑफ z, और ये किस चीज़ के बराबर है? दिस इज़ 3 प्लस 3.6 z इनवर्स प्लस 0.6 z माइनस 2, 1 प्लस 0.1 z माइनस 1 माइनस 0.2 z माइनस 2. अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसका ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑल ज़ीरो सिस्टम, ऑल ज़ीरो सिस्टम. ठीक है, और आपके पास ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ट्रांसफ़र फंक्शन का ये जो पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं
poles, all pole system. Okay, so this is what, this is all pole system, all pole, this is all pole system. So this part of the transfer function is called all zero system, and this part of the transfer function is all pole system. So अभी हम जो है डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन जो है वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. तो डायरेक्ट फॉर्म टू का जो तरीका है इसको आप याद रखें. सबसे पहले आप लोग जो है z के पावर को नोट करें. ठीक है, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम जो z का पावर है वो क्या है. सो यहाँ पे आप देखें आपके पास z का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 2 डिलेज लगाने होंगे. आप लोगों ने 3 डॉट्स जो है ना वो लगाने हैं. ये आपने 3 डॉट्स लगाने हैं जो अब यहाँ पे आप देखें तरीके को, आप देखें आपने 3 डॉट्स लगा दिए. सबसे पहले आप किस चीज़ को नोट करेंगे, आप देखें कि z का मैक्सिमम पावर क्या है. z का मैक्सिमम पावर क्या है, -2 है. तो दरमियान का जो पॉइंट है उसके साथ आप 2 डिले लगाएं. उसके साथ आप क्या लगाएं जी, 2 डिले लगाएं. सॉरी, z-1 और ये हो जाएगा क्या जी, z-1. तो ये आपने जी 2 डिले लगा लिए. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके साथ इस तरह का एक प्लस लगाएं, और ये जो पॉइंट है इसके साथ आप इस तरह का एक प्लस लगाएं. अब जी आपने इक्वेशन को देखना है. इस इक्वेशन को आप देखें, डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपका जो ऑल पोल सिस्टम है वो पहले आता है और उसके बाद आपके पास ऑल ज़ीरो सिस्टम आता है. ये डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपके पास पहला कौन सा सिस्टम आएगा इस ट्रांसफ़र फंक्शन का, पहले आपके पास आएगा ऑल पोल सिस्टम. ठीक है, तो ऑल पोल सिस्टम कौन सा है, दिस इज़ 1. तो पहले ये डायरेक्ट चला जाएगा, दिस इज़ 1. फिर ये क्या है, दिस इज़ माइनस, दिस इज़, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में पहले आपके पास कौन सा सिस्टम आएगा, ऑल पोल सिस्टम आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ऑल ज़ीरो सिस्टम आएगा. सो ये आपके पास क्या ऑल पोल सिस्टम है. ऑल पोल सिस्टम में क्या है, 1 है, तो 1 आ गया. कीप इन माइंड कि ऑल पोल सिस्टम में ये जो साइन है ये चेंज होगा. ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब क्या है, 0.1 z इनवर्स प्लस ये क्या है, दिस इज़ 0.1. लेकिन चूँकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो ये माइनस हो जाएगा. और ये एडर मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, -0.2 है. तो -0.2 क्या बन जाएगा, +0.2 बन जाएगा. और यहाँ पे एडर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई और z का पावर नहीं है. अगर यहाँ z का पावर -3 होता कोई और, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई और डिले होता यानी इसके साथ हमने कोई और चीज़ ऐड करनी होती तो यहाँ पे एडर लगाता. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई एडर जी. और ये क्या हो गया जी, आपका एक्स हैपन हो गया. सो डायरेक्ट फॉर्म 2 में आप लोगों ने क्या किया, आपने पहले इस इक्वेशन ऑल पोल सिस्टम को ड्रा किया. 1
0.1 जी इनवर्स माइनस 0.2 जी माइनस 2। ये हो गया जी क्या, दिस इज़ ऑल पोल सिस्टम। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने ऑल ज़ीरो सिस्टम जो है वो ड्रा करना है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह ड्रा करना है कि इनके डिलेज जो है वो कॉमन हो। ठीक है, डिलेज कॉमन हो का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखें, आपने ऑल पोल सिस्टम ड्रा कर दिया। नाउ यू हैव टू ड्रा ऑल ज़ीरो सिस्टम। सो ऑल ज़ीरो सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ 3, सो ये आ जाएगा 3। फिर क्या है 3.6 जी इनवर्स, तो ये जी इनवर्स ये क्या हो जाएगा 3.6। यहाँ एक एडर लगाए, इसको इसके साथ ऐड करें। उसके बाद क्या है 0.6 जी माइनस 2, 0.6 एडर लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है क्योंकि नीचे और कोई डिलेज नहीं लगे। तो यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ वाई अप इन, सो दिस इज़ डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर। और डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आप लोगों ने ऑल पोल सिस्टम को ड्रा करना है, लेकिन कीप इन माइंड कि ऑल पोल सिस्टम में इनके जो साइन है वो चेंज होंगे ड्यू टू डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्मली फ़्लो जो है वो इनपुट से आउटपुट की तरफ है। फ़्लो क्या है, एक्स आप इन की तरफ से वाई आप इन की तरफ है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फ़्लो जो है दिस इज़ अ सॉर्ट टाइप ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे फ़्लो उलट है, तो इस वजह से +1 की जगह मैंने -1 लगा दिया और -2 की जगह मैंने +0.2 लगा दिया। ठीक है, सो दिस रियलाइजेशन इज़ डायरेक्ट फ्रॉम टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब आप लोगों ने डायरेक्ट फ्रॉम टू स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, तो इससे आप लोग डायरेक्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर में जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने पहले ऑल पोल सिस्टम को ड्रा किया। ठीक है, दिस वाज ऑल पोल सिस्टम। ये आप लोगों ने क्या ड्रा किया, ये आपके पास ऑल पोल सिस्टम था, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास ऑल ज़ीरो सिस्टम था। लेकिन आप लोगों ने इसको इस तरह ड्रा किया कि इसका डिले जो था वो कॉमन था। लेकिन डायरेक्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर में जब आप बात करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर की, सो डायरेक्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर में ये आप लोगों के पास था ऑल ज़ीरो सिस्टम, और ये आपके पास था ऑल पोल सिस्टम। ठीक है, अब डायरेक्ट फ्रॉम वन में क्या होगा, आप पहले ऑल ज़ीरो सिस्टम को ड्रा करेंगे, उसके बाद ऑल पोल सिस्टम ड्रा करेंगे। तो उसको ड्रा करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हाथ रख के, ये जो आपके पास बाकी सिस्टम बचा ये ऑल ज़ीरो सिस्टम है, इसको आप ड्रा करें। ठीक है, तो इसको आप कैसे ड्रा करेंगे, दिस इज़ एक्चुअली ऑल ज़ीरो सिस्टम। तो आप ऑल ज़ीरो सिस्टम ड्रा करें, इसको आप यूँ ड्रा करें। तो इसको आप ड्रा करें, वी आर गोइंग टू ड्रा डायरेक्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर। ये आपके पास हो जाएगा जी इनवर्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनपुट एक्सपिन। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या ड्रा करना है, ऑल ज़ीरो सिस्टम के बाद आप लोगों ने ऑल पोल सिस्टम को ड्रा करना है, यानी आपने इसको ड्रा करना है।
So this is all pole system. अब इसको आप ड्रा करें, यहाँ पे एक प्लस लगाए, फिर एक और प्लस लगाए, और फिर यानी आपने ये सिस्टम ड्रा करना है, ठीक है। एक डिले, दूसरा डिले, और इसका फ्लो 1 माइनस 0.1, दिस इज 0.2। अब इन दोनों को मिलाए, दिस इज वाई अप एन। सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, और इस डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर से हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर कैसे निकालना है। ये नहीं, अगर हम पहले ऑल ज़ीरो सिस्टम ड्रा करें, उसके बाद ऑल पोल सिस्टम ड्रा करें और उसको इस तरह कैस्केड कर दे, तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर होगा। डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा लगेंगे। डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ़ डिलेज जो है वो कम लगेंगे। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है हार्डवेयर के लिहाज से दिस इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड, और यहाँ पे आपको ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए होगी, ठीक है। तो इस पे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। Now let's come toward example 6.4. So now let's come toward example 6.4. So in example 6.4 we have given a system transfer function, and we have to draw the direct form 1 and direct form 2 structure of this system, whose transfer function is given as 1 plus 2z inverse plus z minus 2. सो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आप पहले डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं या डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर आप ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर अगर आप पहले ड्रा करना चाहते हैं तो पहले आप लोग ऑल पोल सिस्टम ड्रा करेंगे, और उसके बाद ऑल ज़ीरो सिस्टम ड्रा करेंगे, और इनको ऐसे ड्रा करेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिलेज जो है वो कॉमन हो। लेकिन अगर आप पहले डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले ऑल ज़ीरो सिस्टम ड्रा करेंगे, उसके बाद ऑल पोल सिस्टम ड्रा करेंगे, उनको कैस्केड करेंगे, तो दिस विल बी द डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन। सो नाउ आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आप पहले कौन सा ड्रा करना चाहते हैं। चलो, इससे पहले हमने डायरेक्ट फॉर्म 2 पहले ड्रा किया था, और डायरेक्ट फॉर्म 2 से हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 ड्रा किया था। अब यहाँ पे हम जो है पहले डायरेक्ट फॉर्म 1 ड्रा करते हैं। लेट्स सो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो सिस्टम है वो इसके दो पार्ट्स है। दिस इज़ एन IIR सिस्टम, सो इट हैज़ 2 पार्ट्स बेसिकली। दिस इज़ ऑल ज़ीरो सिस्टम एंड दिस इज़ ऑल पोल सिस्टम। ओके, सो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट सपोज यहाँ पे हम पहले डायरेक्ट फॉर्म 1 ड्रा करना चाहते हैं। सो डायरेक्ट फॉर्म 1 में आप लोगों ने पहले किस चीज़ को ड्रा करना है, पहले आप लोगों ने ऑल ज़ीरो सिस्टम को ड्रा करना है। मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स आप लोग रखें, यहाँ से डिले आप लगाएं। कितने डिले लगाएंगे? 2 डिले लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लगाए, दिस इज़ एक्स अप इन, ठीक है, एंड दिस इज़ यहाँ पे एक एरर लगाए प्लस, दिस इज़ आउटपुट। सो दिस इज़ 1, उसके बाद क्या है, +2 है,
this is 2 and this is what, this is 1. सो यहाँ एडर की ज़रूरत नहीं है. सो ये आपने क्या ड्रा किया, दिस इज़ ऑल ज़ीरो सिस्टम. जी अब यहाँ पे क्या करें, 3 डॉट्स लगाए. अच्छा जी, यहाँ से ऑल पोल सिस्टम भी आप लोगों ने ड्रा करना है. तो कितने डिले आएंगे, 2 डिले आएंगे. ठीक है, 2 डिले आ गए. अब इसके बाद ये आ जाएगा जी 1. ये आ जाएगा जी 1. ठीक है, और 1 के बाद के 0.75, तो ये -0.75 की जगह +0.75 हो जाएगा. और यहाँ पे एक एरर लगा लें तो ठीक है. अब इसके बाद के +1.25 जी है, तो इसको आप लिख के -0.125. ठीक है, अब इन दोनों को दिस इज़ ऑल पोल सिस्टम. ठीक है, ऑल ज़ीरोस. अब इन दोनों को कैस्केड कर दे और इसको यहाँ पे वाई आप इन लिख लें. सो दिस इज़ एक्चुअली अ डायरेक्ट फार्म 1 स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इनके जो डिलेज़ है वो सेपरेट है. ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप पहले डायरेक्ट फार्म 2 रियलाइजेशन ड्रा करें और उससे डायरेक्ट फार्म 1 रियलाइजेशन ड्रा करें. अगर आप डायरेक्टली डायरेक्ट फार्म 1 रियलाइजेशन ड्रा करना चाहते हैं तो उसका फिर ये तरीका है. ठीक है, दिस इज़ अप टू यू पीपल. ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ लेट कम टू अ डायरेक्ट फार्म 2 रियलाइजेशन. डायरेक्ट फार्म 2 रियलाइजेशन में हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था. सबसे पहले आप सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को देखें. 3 डॉट निकालें. 3 डॉट आप लोगों ने लगा दिए. यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और जो दरमियान डॉट है उनसे आप डिले ड्रा करेंगे. तो कितने डिलेज ड्रा करेंगे, 2 डिलेज ड्रा करेंगे, क्योंकि आपका जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें जी का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है. तो आप लोग 2 डिले ड्रा करें, 1 एंड दिस इज़ सेकंड. अब डायरेक्ट फार्म 2 में ये डिलेज जो है ये कॉमन होंगे. तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले ऑल पोल सिस्टम ड्रा करना है. सो ऑल पोल सिस्टम का पहला है क्या है, 1 है विदाउट एनी डिले. सो दिस इज़ 1. उसके बाद क्या है, 0.75 जी. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. यहाँ पे एक लगा लें और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.75. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, 0.125 है. तो आप यहाँ पे लगाए -0.125. ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने ऑल ज़ीरो सिस्टम ड्रा करना है. ऑल ज़ीरो सिस्टम का पहला एलिमेंट क्या है, दिस इज़ 1. तो ये 1 आ जाएगा. उसके बाद क्या है, 2 है. सो दिस इज़ 2. उसके बाद पॉइंट, इसके बाद है 1. दिस इज़ 1. दिस इज़ इनपुट x आप in, this is output y up in. So this is actually a direct form 2 realization of this transfer function. मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. ये 2 एग्जांपल्स मेरे ख्याल में इनफ है. ठीक है,
एक्सरसाइज से रिलेवेंट एग्जांपल्स मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट दूंगा। कोई भी क्यूरी हो तो कांटेक्ट करें और ज़िंदा रहे इंशाल्लाह। तो आइस टी के क्लास में मिलेंगे। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।